Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 4 sorting materials into groups. So we have in the previous session we have learned about the appearance. We have learned about appearance के देखने से चीजें कैसी दिखाई देती हैं and by looking at them we can differentiate कि ये चीज है. So now today in this session जो the second property I am taking is of hardness. कितने वो hard है. So let us move. तो our recap जो अभी हमने देखा है कि materials are differentiated on the basis of appearance, hardness, soluble and insoluble, float or sink and transparency. So today we are going to focus on hardness. कि हार्ड मीन्स कितने वो अंदर से स्ट्रॉन्ग है. नाउ हियर आर सम ऑफ द पिक्चर्स. अच्छा लग रहा है देखने में? यस. सो नाउ कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज दिस? ये क्वेश्चन है. व्हाट इज दिस? ये पिलोस है, मीन्स तकिए. ये क्या है? सॉफ्ट टॉय या वी कैन से टेडी बियर. नाउ जस्ट थिंक, कैन यू प्रेस देम? कर सकते हैं आप प्रेस कुशन को? यस. पिलोस को कैन यू प्रेस देम? यस. सॉफ्ट टॉय, ये तो होते ही सॉफ्ट टॉय मीन्स वी कैन कडल देम. ठीक है. सो सम मे बी प्रेस्ड. तो जो हमारे मेटेरियल्स हैं, तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मेटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम कैन बी प्रेस्ड. है या नहीं है? लेकिन देयर आर सम दैट कैन नॉट बी प्रेस्ड. लाइक ये पिक्चर किसकी है? स्टोन्स. Can you recognize the second picture? Wood. अगर किसी बच्चे ने पहचान लिया, very good. And third picture तो very clear, scissor. ठीक है. So ये स्टोन की हम बात कर रहे हैं. कोई मेटल है ये? No. It is not a metal. Metal का हम जानते हैं it is hard. तो it doesn't come in the category of metal. But this is hard. तो this अगर हम करें तो this is a material. Material that is hard. Wood. Material that is hard. So you have seen कि जैसे ये wood है, ये scissor किससे बनी है? आयरन से. So these things cannot be pressed. So we are talking about the आज का टॉपिक क्या है? Hardness, है ना? तो some are soft, some are hard. The things that are hard cannot be pressed. The things that are not hard can be pressed. So try to sketch following materials. तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे मटेरियल है, try to sketch like piece of wood. आप वुड को स्क्रैच करके देखें. अभी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग क्या होगा. जस्ट अगर आपने कभी स्क्रैच करा है उसके बारे में सोचें. एंड अगर आप बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्ट नोट डाउन द लिस्ट एंड ट्राई टू स्क्रैच. ठीक है. मेटल की जो ताली होती है, हाँ? ताली चाहे वो होता है लॉक एंड की, तो उसको जस्ट ट्राई टू स्क्रैच. कोई चीज भी मेड बाय एल्यूमिनियम, ठीक है. ट्राई टू स्क्रैच. देन स्टोन, देन कैंडल एंड देन चॉक. तो एकदम देखते ही अगर आपको कुछ चीजों का, तो यू विल गेट द आइडिया ना क्या होगा. चॉक, यस यू कैन स्क्रैच. कैंडल, मोमबत्ती, फिंगर से उसके पार्ट्स आ जाएंगे ना छोटे छोटे बाहर. बट एक जल्दी से आप सोचिए, की को अगर इफ यू स्क्रैच, एनीथिंग कैन कम आउट? नहीं. Now, soft and hard metals. So, some materials are soft and some are hard.
Materials which can be compressed. Compressed means दबाया जा सकता है, दबाना. Materials which can be compressed means दबा सकते हैं और scratched easily are called soft materials. So that can be compressed, like we have seen the example of pillow. We have seen the example of pillow. और कौन सा एग्जाम्पल देखा था, पिक्चर देखी थी ना, सॉफ्ट टॉय. These come in the category of soft material. Is this thing clear to you? Materials which cannot be compressed or scratched easily are called soft material. नहीं, hard material. So this is, can we say soft? नहीं, hard material. ठीक है, इसको हम यहां पे we will say hard. ठीक है. So materials which cannot be compressed or scratched easily are called hard materials. Like example, आयरन हमने देखा था, सीजर का, और कौन सा एग्जाम्पल देखा था, वुड. So in this way, based on the hardness, we can differentiate between soft material and hard material. Now, some characteristics of material. कि in appearance, materials can have different properties. Like luster. Luster means shyness, चमक. तो in appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or be smooth. तो by appearance we can differentiate the material. कि some have luster means shyness होती है, but some don't have luster. Then some are hard, some are soft, जो अभी हमने देखा. Then this is very important, rough or smooth surface. Some material का you will find rough surface like wood. वुड अगर आप पेड़ को पकड़िए हाथ से, क्या होता है, स्मूथ सरफेस मिलेगी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल प्लांट्स, बड़े बड़े पेड़ जैसे नीम का पेड़ है, हाँ, या बेनियन ट्री है, उसके स्टेम को पकड़े, यू विल फील रफ. लेकिन सेम टाइम आपको आयरन रॉड पकड़े, वो भी थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा कहीं सा स्मूथ, थोड़ा सा रफ भी आपको मिलेगा. सो सब मटेरियल के रफ और स्मूथ सरफेस होते हैं, और जिनके रफ और स्मूथ सरफेस होते हैं, देयर इज वन मोर कैटेगरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. एंड देन जो एक और चीज देखिए अबाउट लश्य. तो एज यू रिमेम्बर, आई हैव टोल्ड यू कि जैसे आयरन है, तो आयरन क्या है, आयरन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स, है ना. अब मेटल्स का क्या है, दे हैव लश्यर. लेकिन जब ये आयरन रस्ट हो जाता है, बहुत रफ सरफेस होता है, लेकिन वो तब रफ सरफेस से हम ये नहीं कह सकते दिस इज नॉट अ मेटल, क्योंकि जब हम कट करते हैं अंदर शाइनी सरफेस मिलता है. ऊपर से रफ इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द रस्टिंग. हाँ, सो इस टाइप से देखें अगर हम, तो कुछ चीजें अगर हमें ऊपर से लग रहा है कि दे आर हार्ड और दे कैन कंट्रोल द हीट, दे कैन होल्ड द थिंग्स, तो और ऊपर से रफ है, तो उनको चेक करने के लिए हम कट करके चेक कर सकते हैं. इनसाइड इफ वी आर फाइंडिंग शाइनी सरफेस, वी कैन पुट देम इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम जब टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं, देन हमें पता चल रहा है कि हाउ
with different categories we can differentiate the materials. So what did we learn today? Today we learned about soft and hard materials, soft and hard materials. So soft materials can be compressed, but hard materials cannot be compressed. So in the next session one more property we are going to discuss. तब तक के लिए जो अभी का है खुद भी वो एक्सपेरिमेंट करके देखें और जो चीजें लर्न करिए उसको एक बार खुद भी रिकैप करें. In the next session we are going to meet again. Till then, take care. Bye.